This is Kuldeep Sharma. Hope you all are good. Well, in this video, we are going to talk about learning English language, how to learn it properly. Okay, if I talk about the journey of a spoken English language of mine, I've been learning English language for almost, it's been a long time. Actually, when I was in second year in law, I've done law. So when I was studying in BLLB, when I was in second year, one of my friends, his name is Rohit actually, he was doing a spoken course, English speaking course in Chandosi. So one day I met him and he told me, Kuldeep, I'm doing a spoken course. And he told me many things about a spoken course. So, and he suggested me, Kuldeep, if you are doing law, then you also need to do this course. Or yeah, when somebody wishes to be an advocate, so he should be good at English language. And I consider, बात तो सही है. So I went there in that institution and I joined that as well. But I had to pay, and I'm not going to reveal the fees of that institution. So I had to pay, and that course was about 3 months. But I stayed there for a long time. I did that multiple times because I didn't get clarity in first time because I was not good at grammar. I was not being able to speak even a single sentence properly. So I did that course multiple times, and along with that, I used to listen to English podcast. I used to read stories, but not a lot. But I listened to a lot in English, like English conversations or English podcasts. Podcast means like spiritual things. Or sometimes I used to listen to about confidence, how to be a good public speaker, how to be a good YouTuber, or how to learn English language. This kind of things I used to listen to in English. So I did many things for improving my English language, and I improved a lot. Those things helped me a lot to improve my English language, and I improved a lot. As far as I know, or as far as I have realized, what is the most important thing for learning English language is speaking and listening. Like, there are many teachers who say or who all tell us that if we want to be good at English language, then we have to read newspaper, we have to watch English stories or English movies. But I don't think so. We don't need to read any newspaper, we don't need to watch English movies if we don't have any interest in English movies. और what about English songs? अरे भाई, उन्हें समझ नहीं सकता इंग्लिश सॉन्ग्स को यार, इतनी आसानी से नहीं समझ सकता कोई. और रही बात बिगनर की, तो it's out of reach. It's out of reach to understand them properly. भैया, इंग्लिश सॉन्ग्स को इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता. जहाँ तक मैंने रियलाइज़ किया है कि इंग्लिश बोलने के लिए सुनो और बस बोलो, और तीसरी चीज़ है स्टेप बाय स्टेप सीखो. अब हो सकता है यू मे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर लॉन्ग टाइम, और यू मे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट spoken English language or English grammar, but you are not being able to speak English language because you have missed those things which you needed to do. You haven't done those things whatever you needed to do. वो चीज़ें नहीं की ना जो तुम्हें करनी चाहिए थी. तुमने तो वो कर लिया जो नहीं करना चाहिए था. मतलब you have learned a lot of grammar and you have read many newspaper. Now you have got bored because you have not improved. Now you have been doing really hard work, but still you are not being able to speak English language because you have done everything wrong. Of course, you know why we do join any institution, because we get proper guidance. There is nothing free of cost. कोई भी
पता है कुछ कोई भी चीज़ सही है, कुछ भी सही, तुम्हें कोई फ्री में नहीं देना चाहता है, देगा तो प्रॉपरली नहीं देगा, प्रॉपर वे में जो होना चाहिए। अब देर आर मैनी और थाउजेंड्स ऑफ और लाख्स ऑफ channels on YouTube, and they have been recording many videos, they have been publishing many videos, but what is the use of those videos भैया, if we are not improving ourselves? लाखों करोड़ों वीडियो देख ली पर फिर भी इम्प्रूव नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? Because they are not telling the truth. Whatever we need to do, they are just telling us that you need to do this, but they are telling those things whatever we don't need to do for learning English language. They have been making us fool. Yeah, I couldn't find any channel yet who is teaching step by step. अब किसी भी यूट्यूबर को देख लो, बहुत सारी वीडियो होंगी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, करोड़ों लाखों हज़ारों वीडियो हैं, है ना। एक चैनल पे 10-10 हज़ार वीडियो हैं, 1,000 1500। क्या तुम्हें लगता है कि 1500 वीडियो देखने के बाद इंग्लिश आएगी? और हाँ, किसी ने तो देख भी ली होंगी, तो क्या आपको आ गया फ्लोलेस स्पीकिंग, मतलब बोलना? आर बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली और फ्लोलेस? नॉट एट ऑल, बिकॉज दे आर नॉट टीचिंग अस स्टेप बाय स्टेप। एक चीज़ होती है कि जब हम स्टेप बाय स्टेप कोई भी स्किल्स हो या लैंग्वेज हो सीखते हैं ना, तो वो जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई चीज़, ये होता है ना, जब हमें बेसिक पता है किसी चीज़ का, है ना। अब सपोज आपको पता है कि जब हमें कोई कपड़ा सिलना है, पैंट बनानी है कोई चीज़, कपड़ा क्यों सिलेंगे, तो पैंट ही बनाएंगे ना। जब हमें पैंट बनानी है तो सबसे पहले क्या, अब तो आपको ये नहीं पता है कि उसे काटेंगे, छांटना बोलते हैं ना, कि उससे जब शेप में लाएंगे उस चीज़ को, उसके बाद सिली जाएगी। अब ऐसा है कि काटा नहीं, कुछ भी इधर उधर काट के और एकदम से सिलने लगे, तो लग रहा है आपको बन जाएगी पैंट। तो क्या हमें प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, तो उसके बाद सब कुछ होगा, है ना। और सपोज चाय बना रहे हैं आप, चाय कब कैसे बनेगी? फिर सबसे पहले आप पानी रखेंगे या सबसे पहले आप चीनी डाल देंगे, उसके बाद पानी डालेंगे? नहीं, वो तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन सपोज आपने अदरक पहले डाल दिया और उबाल दिया, दूध डाल दिया, उसके बाद नीचे उतार ली, फिर चीनी और चाय पत्ती जो होती है वो डाली, तो तुम्हें लग रहा है कि बन जाएगी चाय? और बन भी जाएगी तो बहुत ही गंदी। तो होता ना, हमें हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा, तभी हम कुछ चीज़ें सीखेंगे। अब आप सोच रहे हैं वाई एम आई सेइंग लाइक दिस, और वाई एम आई मतलब शूटिंग दिस वीडियो, व्हाट इज़ द मीन ऑफ इट? आई वॉन्ट टू से और आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई एम गोइंग टू मेक अ चैनल। अब आपको लग रहा है हाँ भैया बस ये से यूट्यूब है, नॉट एट ऑल। आई एम डूइंग BLLB, आई हैव डन BLLB, आई विल बी एन एडवोकेट, बट टीचिंग इज माई हॉबी। आई जस्ट वॉन्ट टू टीच, आई जस्ट वॉन्ट टू स्पीक आउट, बिकॉज आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, दे ऑल्सो स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, and there are many other students, they have been learning English language, now they have got stuck, they have got bored after learning so much grammar, but still they are not being able to speak English language properly because they have not got proper guidance. अब होता ना, किसी के पास भैया पैसे हैं, किसी के पास नहीं है। हमारे पास पैसे थे, सीख लिया हमने। हो सकता है आपके बहुत सारे, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों, देखो सीखना है इंग्लिश। अब सपोज आई डेंट हैव टू पे मच मनी देयर, but what about whatever I used to spend there? I was paying room rent, I used to buy many things. What about मतलब eatables, खाने के लिए भी चाहिए होता है, रूम के लिए भी चाहिए होता है, आप कहीं जा नहीं सकते ना। तभी देखो कोर्स इम्पोर्टेंट है खरीदना स्पीकिंग का, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने खुद पता है, खुद सीखा है मैंने। I had been learning English language for a long time from YouTube, but I didn't get right surrounding. और about surrounding, I didn't get right mentor that how to speak or how to learn it proper way. देखो स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ सीखोगे जल्दी सीख जाओगे। अब ऐसा, अब तुम्हें क्या लगता है, देखो 3-3 महीने का कोर्स है ना, हो सकता है आपको 3 साल हो गए, फिर भी आप उस तरीके इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो जिस तरीके आपको सीख जाते अब तक। क्यों? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखे आप। तो देखो, इफ़ आई टॉक अबाउट मी, आई विल बी टीचिंग यू स्टेप बाय स्टेप,
आई विल नॉट बी टीचिंग यू एक्चुअली, आई विल बी मेकिंग यू प्रैक्टिस कि किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, क्या क्या मैंने सीखा था उस इंस्टीट्यूशन में, वट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशन आई विल बी टीचिंग यू प्रॉपरली, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या सीखना है, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। ओके, जब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे 3 महीने में बहुत सारा सीख गया था, लेकिन हाँ पूरा प्रॉपरली नहीं बोल पा रहा था। क्यों नहीं बोल पा रहा था? देखो प्रैक्टिस, आई डिडंट यूज्ड टू प्रैक्टिस लॉट। लेकिन समय के साथ क्लैरिटी आ गई थी कि सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देखो रीडिंग राइटिंग और होता है ना, बोलते हैं कि रीडिंग राइटिंग लिसनिंग, और रीडिंग राइटिंग लिसनिंग, और अरे यार रीडिंग राइटिंग लिसनिंग, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग तो रह गया मेन चीज़। तो स्पीकिंग 4 चीज़ करनी चाहिए, नॉट एट ऑल। एज फार एज आई हैव realized that we need to do only 2 things, listening and speaking, and the third thing is learn step by step। वो तो है ही ना कि वो तो अलग हो गया स्टेप की, मतलब स्टेप बाय स्टेप सीखो, उसके बाद भैया प्रैक्टिस करो, फिर सुनना स्टार्ट करो कुछ चीज़ें। अरे मैं अपनी बताऊँ तो बहुत गंदा बोलता था मैं इंग्लिश से, है ना, मतलब वो होता है ना, हाउ एक सेंटेंस होता है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस, मतलब जब हम किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं कि भैया आप इस काम को कितने समय से करते आ रहे हैं या कितने समय से कर रहे हैं, तो ये सीखा था मैंने कन्वर्सेशन करते करते सीख गया था मैं लोगों से बात करते करते कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज और हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस। लेकिन मुझे मतलब पता था कि हाँ इसका ये मतलब है, स्ट्रक्चर कहीं से नहीं सीखा था, वो सुन के ही सीख गया, बोल के सीख गया। और यू नो व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन आई वाज एट बेसिक्स, और ये 6 घंटे प्रैक्टिस करता था मैं। आई यूज़ टू प्रैक्टिस अबाउट 6 and 7 hours। अब आप पूछ रहे होंगे क्या, सोच रहे होंगे कैसे, क्योंकि मैं गलत ही बोलता था, लेकिन बोलता था। आई हैड मैनी व्हाट्सअप ग्रुप से मेरे पास, सो आई यूज़ टू कनेक्ट विद मैनी पीपल। आई यूज़ टू कनेक्ट विद मैनी फॉरेनर्स एंड इंडियंस एज वेल। सो कुछ होते थे जब मुझे लगता था ना कि हाँ कुछ चीज़ मैं बोल पाता था, लाइक 2-4 मिनट शुरुआत में जब एकदम शुरू किया था मैंने, तो 2-4 मिनट बोल पाता था मैं। उसके बाद मुझे लगता था कि हाँ अब मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने, तो कॉल काट देता था। अरे क्या हमारे घर आ रहा है, वो उसे पता ही नहीं हम कौन है, नाम बता दिया बस, किसी को नहीं पता कौन क्या है, तो बस प्रैक्टिस करनी है। अननोन पर्सन से ज़्यादा मजा आता है सच में। वेन अब सपोज यू हैव हेजिटेशन एंड यू डोंट वांट टू टॉक टू दोज पर्सन हु नोज यू, हु नो यू, who recognize you as a student, or they are like your best friend or friends, they live in your surrounding, then we get hesitate while speaking, while talking to them, because we know our reality. We speak wrong English, we commit mistakes, multiple mistakes or many mistakes. We know only 10% or 5% or 20% English language, but we just want to explore, we just want to speak. तो उनसे बोलो ना जिन्हें आप जानते नहीं हो, उनसे प्रैक्टिस करो ना जिन्हें आप जानते नहीं हो। सो देयर आर मैनी व्हाट्सअप ग्रुप्स, यू कैन गूगल लाइक इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस व्हाट्सअप ग्रुप्स, सो यू कुड गेट मैनी लिंक्स फ्रॉम देयर। बस सही से करना, कोई गलत चीज़ होता है ना कि मतलब अब हो जाएगा, जैसे जैसे आप करते जाओगे तो होता जाएगा। पर यूज टू स्पीक मोर देन 6-7 hours, ये 4 मिनट किसी 4 मिनट के लिए, किसी 5 मिनट, वही प्रैक्टिस करते गए। लेकिन जब मैंने इंस्टीट्यूशन पर बुक किया था, ज्वाइन किया था, तो उसके बाद मतलब मुझे आई डेंट हैव क्लैरिटी अबाउट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज। यार आई वॉज रियली बैड एट इंग्लिश, बहुत ही गंदा था मैं, सही बताऊँ बहुत ही गंदी, मतलब एकदम क्या ही बताऊँ, बहुत ही गंदा वाला स्टूडेंट था मैं इंग्लिश में। सो मतलब बट या आई जस्ट वांटेड टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज एनी हाउ, किसी भी तरह से मुझे इंग्लिश सीखनी थी, मुझे बोलनी थी। आई डेंट यूज टू गेट हेजिटेट स्टक, ऑफ कोर्स आई यूज टू गेट स्टक, होता है ये सब अटकते ही हैं शुरुआत में, बोलते हो सबको प्रॉब्लम आती है। बट व्हेन यू हैव ट्रू डिजायर टू लर्न समथिंग, इट डज नॉट मैटर टू यू लाइक समवन इज मेकिंग फन ऑफ अस और समवन इज लाफिंग एट योर इंग्लिश। और कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई मेरी इंग्लिश को पहले हंसते थे, बट आई डिडंट यूज टू माइंड देम, नो प्रॉब्लम, I didn't mind them, no problem. If he is listening, sorry, if she is laughing at my English or he is laughing at my English, no problem. Because this is how a baby or a kid learns
हिज और हर नेटिव लैंग्वेज। भैया इसी तरीके से एक छोटा बच्चा सीखता है और बड़ा भी सीखता है उसी तरीके से। तो जो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो गलती तो करेंगे ना, नो प्रॉब्लम। अब यू आर मेकिंग मिस्टेक एंड somebody is making fun of you, what is the problem? No problem. He is making fun of you because he doesn't want to do anything new, he doesn't want to try anything new. देखो, the person who already knows English language, he speaks English language, he can never makes fun of you, he can never make fun of you, makes fun of you या make होगा, he can never make fun of you because he knows the reality how he has been learning English language. जिसे पता होगा, जिसने सीखा उसे पता ही होगा कि उसने किस तरीके से सीखा है. The way I used to learn English language, the way I have been learning English language, I know it happens when we try to speak English language, we get stuck because we don't get right word at the right time. It's all about practice. देखो ये सब प्रैक्टिस का कमाल है. अब सपोज एक सेंटेंस है, अभी आप ये रट्टा मान लो कि आई बीन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर लॉन्ग टाइम, आई बीन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर लॉन्ग टाइम. अब मैंने अभी बताया था ना कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज. अब उसी की जगह ये आप 10 बार बोल लो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज. ये ऐसा टंग पे एकदम सेट हो जाएगा ना बोलना चाहोगे फिर भी निकल जाएगा एकदम से अचानक से, कभी किसी से बोलोगे तो. अब ये है कि वो बोलते हैं कि रट्टा मरवाते, भैया रट्टा क्या लैंग्वेज है, वो रट्टा तो माननी पड़ेगा ना. हाउ हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, हाउ हैव यू लर्नड योर ओन लैंग्वेज, योर ओन नेटिव लैंग्वेज बाय स्पीकिंग, बाय प्रैक्टिसिंग, बाय डूइंग रट्टा. अरे रट्टा मारना पड़ता है यार. अब ग्लास को ग्लास नहीं बोलो, सब मम्मी ने कहा ग्लास तो आपने ग्लास ही सीखा ना, बार बार उसी ग्लास बोला तो ग्लास ही हो गया ना वो. तो क्या किसी किताब से सीखा था? नॉट एट ऑल. यू कॉल like you call your papa because your mom told you that he is your papa, he is your father, he is your sister, she is your brother, not he is your brother. So that's how we learn English language. So if in this video we have not learned anything, but yes, of course you have learned many things how to learn English language. Yeah, by next video I'll teach you step by step how to learn, or I'll make you practice. I'll make every video about 1 hour or more than 1 hour. देखो ऐसा ना 10-5 मिनट करके प्रैक्टिस आ गई इंग्लिश, नॉट एट ऑल. ऐसा होता है कि आपने हिंदी 10-5 मिनट बोल ली, उसके बाद आप बोलते ही नहीं थे, उसके बाद आ गई बचपन में. You tried multiple times to speak all the time English और हिंदी, whatever your native language. ये होता ही है, तो हम सीखना चाहते हैं तो बोलना पड़ता है. मल्टीपल टाइम से बोलोगे मल्टीपल टाइम से आएगा, उतना ही सेट होगा टंग पे. सो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय, थैंक यू.